Hello student, good morning. I welcome you all to the second lecture of unit 4, that is human factor engineering. In the first lecture we studied about the what is human factor, what are the parameters and type of human factors, and how does the parameter and other factor affect the human or a worker in an organization. Today in the second unit we will be going through, or we will be studying about the man machine systems. In this lecture we will see what is man machine system, what are the characteristics of man machine system, and how does machine act as a component of man machine system, how a man act as a component of a man machine system. Here man means a worker or a employer. What are the types of man machine system, what are the relation between man and machine, and the criteria for evaluating the man and machine system. This is one of the important topic in the second unit, in the fourth unit, and every year the question comes from the man machine system. So I have already discussed that in this lecture what are the different areas or topic we would be learning about man machine system. First of all, what is you are going to gain after learning or after seeing this lecture. After studying this, you will be able to understand the application of work science in an organization. You will be able to explain the man machine systems. You will be able to define the relationship between man and machine. And after studying this unit, one can reduce the fatigue or a failure in an organization, and you can adopt some policy, or you can come up with some of the measures to reduce the fatigue. So now moving on to the next. First of all, what is a man machine system and why is it needed? First of all, I will talk about why is it needed, why the man machine system is needed. Man machine system is basically, it is required to increase the efficiency of a human operator or a worker through giving a adequate attention to his comfort or to his need as an organization. Means किसी भी ह्यूमन ऑपरेटर का हमें एफिशिएंसी बढ़ाना है. वो कैसे बढ़ना चाहिए? हमें उस वर्कर के कंफर्ट और उसके नीड का ध्यान रखना चाहिए, हमें नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को. एंड द सेकेंड वन विल बी टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ मैन मशीन सिस्टम. टोटल मैन मशीन सिस्टम मीन्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ मैन बाय अपग्रेडिंग हिज स्किल or by giving or fulfilling his requirement or need. And on the other direction, we need to upgrade our machines or tools by the changing in environmental condition or by change in the industry demand. We should upgrade our machines too. So here I have written the definition. What is man machine system? It is a relationship between man and machine system, man and his working environment. The word environment includes the tools. यहाँ पे environment का मतलब है tools, material, method of work, organization of his work. वो किस टूल पे काम कर रहा है, कैसे वो टूल को अप्लाई कर रहा है, कौन से मटेरियल पे काम कर रहा है, किस मटेरियल को कहाँ पे अप्लाई करना है, उसका मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो पोटेंशियल है कि नहीं, ये सब हमें देखना पड़ेगा, ये सब हमें देखना चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर डिमांड टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी और द परफॉर्मेंस ऑफ ए टोटल मैन मशीन सिस्टम. This all, what are the this all parameter what I have told here, the material, method of work, organization of his work, this all are related to the nature of man himself, nature of worker himself, to his abilities, capabilities and limitation. I will discuss here about some of the limitation that here people, that means a worker can't apply a large amount of a physical force.
हम किसी भी वर्कर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी क्षमता के ऊपर जा कर के फिजिकल फोर्स लगाए. नाइदर वी एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म रैपिडली सिंपल एंड रिपीटेटिव मूवमेंट विदाउट फटीग एंड मिस्टेक्स. हम उसको बार बार अगर कोई काम चीज़ें दे, कोई ऐसा काम दे जिसको उसको रोज़ वही चीज़ें रिपीट करना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके रिपीटेटिव मूवमेंट के कारण उसको कोई फटीग फेलियर नहीं होगा. उसके किसी भी मसल्स में फटीग फेलियर के कारण हो सकता है और वो मिस्टेक्स भी कर सकता है. और वर्कर कांट परफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रैपिडली. कॉम्प्लेक्स अगर प्रॉब्लम है उसके पास, कॉम्प्लेक्स उसके पास कोई ऐसा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स का ले लीजिए या न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का ले लीजिए, अगर वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें हायर मैट्रिक्स का है, हायर इंटीग्रेशन है, हायर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वो जल्दी और आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते. पीपल कांट डू सेवरल डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली. हम किसी भी वर्कर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एट ए टाइम एक समय पे बहुत सारे काम वो करता रहे. We can't expect them to respond rapidly to a frequent changing control signal, or we can't expect them to store and recall large unrelated data. हम किसी भी वर्कर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ डेटा स्टोर करके रखे और जब भी उनसे पूछा जाए वो एट ए टाइम हमें आंसर दे पाए. So these all are the limitation of a man. Therefore the man machine system should be taken into a great importance in any organization for the enhancement or to increase the productivity of an organization. Now moving forward, what are the limitation of machine? If man has a limitation, then definitely there is a limitation in machines too. First of all, machine can't respond to a wide range of stimuli beyond predetermined limit. सभी मशीन का एक लिमिट है. मान लीजिए कोई मोटर है, वो 5 हॉर्स पावर का मोटर है. सो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 5 हॉर्स पावर के ऊपर के लोड को वो बियर कर पाए. द सेम वी कांट एक्सपेक्ट द मैन टू अप्लाई अ फिजिकल फोर्स बियॉन्ड इस लिमिट्स. मशीन कांट रिस्पॉन्ड टू ए अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स. मशीन एक पहले से ही प्री डिटरमाइंड और प्री प्रोग्राम्ड होता है. उसे जैसा सिखाया जाता है, जैसा उसे निर्देश या डायरेक्शन दिया जाता है, जैसा उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाता है, वो वैसे ही ऑपरेट करता है. अचानक से अगर उसके सामने कोई दिक्कत आ गई या डिफ़िकल्टी आ गई तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व नहीं करेगा. देयर शुड बी ए मैन हु विल अप्लाई अ न्यू आइडिया, हु विल अप्लाई अ न्यू प्रोग्रामिंग टू सॉल्व दैट अनप्रेडिक्टेबल इवेंट. दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज व्हाट द मैन हैज़. मैन कैन respond to an unpredictable event. मशीन कांट थिंक इंडक्टिवली. मशीन सोच नहीं सकता, वो हमारे मैन के सोच पे ही काम करता है. मशीन कांट एक्ट विथ फ्लेक्सिबिलिटी. मशीन कोई फ्लेक्सिबिलिटी से एक्ट नहीं करता. मशीन कांट एक्ट. मशीन कांट फंक्शन बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स ऑफ कैपेसिटी. मशीन अपनी नॉर्मल लिमिट के अगेंस्ट जा करके, बियॉन्ड जा करके काम नहीं कर सकता. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ टिपिकल diagram showing how does a man machine system works. First we have a input system, then we have a sensing or a receiving information, then we have a information processing, then we have a effector, action or controller function, then output, and everywhere there is a feedback. This is how the man machine system works. The input of, first of all, the input, I will say about input. It is the first and foremost feature and it is very essential. The input information mainly consists of various commands, languages or ingredients which are necessary to achieve the desired output or the outcome. For example, the input information may consist of material in the form of information or energy. Second one is the sensing or receiving information. They are the information processing and decision taking factor. ये इनपुट हो गया. ये पूरा जो हमारे पास ये वाला ब्लॉक है, ये है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसीजन टेकिंग फैक्टर. इसके बाद ये आउटपुट होता है. वी कैन से दैट दिस इज़ अ सब कंपोनेंट ऑफ मैन मशीन सिस्टम. ये एक सब कंपोनेंट है मैन मशीन सिस्टम का, जो हु रिसीव्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इट, प्रोसेस करता है और फिर उसके ऊपर एक्शन अप्लाई करता है.
The sensing or receiving information is very essential or important. If there is no proper sensing, that is the receiving of information, so sometime it may predict the wrong answer. अगर ये सेंसिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन सही तरीके से हमने ऑपरेट नहीं किया या सही तरीके से हमने प्री प्रोग्राम नहीं किया, अगर ये गलत तरीके से किया तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं होगा, ये अलग ही गलत डायरेक्शन में ही हमें लेके जाएगा. जब हमारा इनपुट ही गलत हो गया तो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंटर कंपैरिजन डेटा और जो कमांड हम अप्लाई करेंगे वो गलत हो जाएगा. तो हमारा कंट्रोलर और एक्चुएटर जो रहेगा वो गलत चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो हमें गलत मिलेगा. तो फीडबैक हमें उसी हिसाब से मिलेगा, हमें फिर से पूरा प्री प्रोग्रामिंग फिर से करना पड़ेगा. इसमें एक और हमारे पास सब कंपोनेंट है, दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. The storage of information is basically it depends upon I can say that it depends upon the memory of a material. Information basically it can be stored in many ways. For example, punch card. In earlier days we were storing the information by the use of floppy disks. Now we can say that we have CDs, we have a USB pen drive, etc. and etc. By which nowadays we are having the hard disks to store the information. These all are the major subcomponent of a man-machine system. Now next we are going to a characteristics of a man-machine system. What should be the characteristics what should be the characteristics of a man-machine system? Basically, there are three major characteristics. First one is the system must have some response. Second one is the system must have some components, and the third one is system should be designed to do some function that suits human being. I will explain one by one to each of the characteristics of a man-machine system. System must have some purpose. Whatever we are designing by taking the man or a machine, it should have some response. हम कोई भी एम्प्लॉय ले या कोई भी मशीन ले तो हमें ये पता होना चाहिए वो सिस्टम का कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए. अगर मान लीजिए मैं एक वेल्डर को ले लूँ और उसके सामने मैं एक कंप्यूटर रख दूँ तो वो सिस्टम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, वो मैन मशीन सिस्टम. अगर मैं उसी वेल्डर वाले एम्प्लॉय अगर वेल्डर है, अगर उसके हाथ में मैंने वेल्डिंग टॉर्च दे दिया, देन डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू गिव सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स. अगर मैं उसी वेल्डर के हाथ में अगर मैं कंप्यूटर दे दूं तो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू गेट सम positive response or any kind of response. Second, the system must have some component. Some component means there should be some sensor device, there should be some controller to control or to sense the component. And the third one is the system should be designed to do some function that suits human being. सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए मैन मशीन सिस्टम को कि वो सब कुछ ना कुछ ऑपरेट करे, कुछ ना कुछ वो फंक्शन करे, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी. The system, as I already told in the last slide, that system consists of a number of subcomponents, and each subcomponent can be considered as a system, which may have all the required component. In order to analyze any system, the various subsystems should be considered as an independent system. अगर हमें किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करना है तो उसके अंदर जितने भी सब कंपोनेंट है हमें उसको इंडिविजुअल एनालिसिस करना होगा, है ना. नाउ नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, that is types of man machine system. What are the, it can also ask the classification of man machine system. If it asks the classification of man machine system, you should write the types of man machine system. There are three major classification on which here I have written two. Basically it is three. First of all, the classification can be first of all, the man machine system can be classified as based on the importance of their feedback, based on the type of processing, and based on the number of man and machine.
So based on the importance of feedback, there are two types of system. They are open loop system and closed loop system. An open loop system is a system in which the system activates or get started but needs no further control. For example, priming of pump here, open loop system. Once again I will repeat it. Open loop system is a system in which once the system gets started and but it needs no further control. For example, priming of pump. Second one is the closed loop system. A closed loop system is basically a continuous system which require a controller to control a system. For example, driving a vehicle. For closed loop system, for example, or driving a vehicle. कैसे होगा क्लोज लूप सिस्टम में? क्योंकि हमें इसमें कोई सा कंट्रोलर चाहिए या एक्चुएटर चाहिए जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे. सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग ऑफ vehicle. How does this act as a closed loop system? Because driver drives बट इट ऑल्सो कंट्रोल्स. देयर इज अ कंट्रोलर. ड्राइवर कंट्रोलर है. ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग है जिससे वो अपना डायरेक्शन कंट्रोल करेगा. ड्राइवर के पैर में ब्रेक है जिससे वो स्पीड को कंट्रोल करेगा. एक्सीलरेटर है जिससे वो स्पीड को कंट्रोल करेगा. ड्राइवर के हाथ में गियर है जिससे वो गियर को कंट्रोल करेगा. सो ड्राइविंग अ व्हीकल इज कम्स अंडर ए क्लोज लूप सिस्टम. नाउ next, based on the type of processing, there are three types of system under the types of processing. First one is the manual system, second one is the semi-automatic system, and third one is the automatic system. Manual system, as the name, from the name itself we can predict it as a system in which all the action are performed by the human being using non-powered devices. सभी इसमें जो भी एक्शन होता है वो पूरे का पूरा ह्यूमन अपने हाथों से करता है विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पावर्ड डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल, लीवर, स्विचेस, नॉब्स. गैस का नॉब हो गया, वो हमें गैस अगर बंद करना है तो वो ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, हमें जाकर के नॉब को घुमाना रहता है. फ़ैन को अगर ऑन करना है तो स्विच ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा, वी नीड टू गो, हम ह्यूमन जाते हैं उसको प्रेस करते हैं. मैनुअल सिस्टम. आई वॉज टॉकिंग अबाउट सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम. मैनुअल सिस्टम में सभी चीज़ होता है जो ह्यूमन बींग अपने तरीके से परफॉर्म करता है नॉन पावर डिवाइसेस से. मैनुअल सिस्टम दैट मीन्स साइकिल, व्हाट वी आर साइकिलिंग इट, राइटिंग comes under manual system. In the semi-automatic system, in this system, some function are performed by the machine component and some function are performed by the human component, but the machine component are controlled by the human component. For example, knobs, switches and levers. knob मैं जाऊँगा या आप जाएंगे, नॉब को घुमाएंगे. मशीन कंपोनेंट है वहाँ पे नॉब, और ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है नॉब को कितना घुमाना है, गैस को सिम में करना है या गैस को हाई करना है या गैस को मिड में करना है. Next one is automatic system. It is automatic system. It should be essentially a closed loop system and is designed in such a manner that it should perform all the required operation functional. This system possesses two characteristics. Automatic system, by the name itself we can see that all the function can be operated automatically. अगर वो automatic हो रहा है तो definitely it will be a closed, it should be a closed system. क्लोज सिस्टम इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर सेंसर होगा. सेंसर के बाद उसमें कंट्रोलर होगा. सेंसर और कंट्रोलर दोनों आपस में सिंक होकर के काम करेंगे तभी वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो सकता है. तो ऑटोमेटिक सिस्टम में दो टाइप के फीचर्स होते हैं, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट आई ऑलरेडी डिस्कस, ए बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग. एक सेंसर होगा, एक मैकेनिज्म होगा जो सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा द एरर और डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट. और एक करेक्टिव मैकेनिज्म रहेगा, कंट्रोलर रहेगा एरर को कम करने के लिए. द एरर शुड बी मिनिमाइज टू हैव मोर एक्यूरेट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड आउटपुट. क्या होगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में? जब हम इंफॉर्मेशन देंगे, व्हेन वी गिव द इनपुट इट विल सेंस द इंफॉर्मेशन सेंस करने के बाद वो प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद जब वो कंट्रोलर में जाएगा तो कंट्रोलर ये चीज़ का कंट्रोल करेगा कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो मैं आउटकम आ रहा है सिस्टम से और जो एक्चुअल आउटपुट था उसमें कितना डिफरेंस है. इफ़ देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस
तो वो फीडबैक भेजेगा इनपुट में, फिर हम इनपुट को चेंज करेंगे, इनपुट कंडीशन को चेंज करेंगे, तो फिर हम कंट्रोलर तक आएंगे। कंट्रोलर फिर हमें बताएगा कि अभी 10% से लेस देन का डिफरेंस है। अगर हमें 10% का लेस देन डिफरेंस है, वो हमें अलाउएबल लिमिट के अंदर है, तो हम एक्सपेक्टेड आउटकम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें फिर फीडबैक मिलेगा, हमें फिर से एरर डिफरेंस को कम करना पड़ेगा। इन दिस वे द ऑटोमेटिक सिस्टम ऑपरेट। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मैन एंड मशीन, फर्स्ट वन इज मैन मशीन सिस्टम और 1-to-1 मैन मशीन सिस्टम। फॉर एग्जांपल इसमें क्या रहेगा, एक मशीन रहेगा, एक आदमी रहेगा। फॉर एग्जांपल ए ड्राइवर विथ ए कार और ए डेटा एंट्री ऑपरेटर विथ अ कंप्यूटर, सिंपल। मैन मशीन सिस्टम और मैन टू वन टाइप ऑफ मैन मशीन सिस्टम, मोर नंबर ऑफ पीपल वर्क ऑन वन मशीन इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें क्या रहेगा, एक से अधिक वर्कर जो रहेंगे एक मशीन पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल पीपल वर्क एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज और बिल्डिंग। मैन मशीन सिस्टम 1 to many टाइप ऑफ मैन मशीन सिस्टम, इसमें क्या है, वन मैन विल बी कंट्रोलिंग मोर देन वन मशीन्स। एक आदमी एक से ज़्यादा मशीन्स पे काम कर रहा है। इट बिकम ईजिली पॉसिबल इफ़ सम पार्ट और द मोस्ट पार्ट इज़ ऑटोमेटेड। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कुछ पार्ट काम का ऑटोमेटिक होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन डेली लाइफ एग्जाम्पल, ए कुक और ए हाउस वाइफ कुकिंग मोर देन वन डिश साइमल्टेनियसली। आप देख सकते हैं अपनी मम्मी को, घर पे लेडी को, वो दोनों गैस पे चढ़ा करके एक तरफ दूसरा डिश बनाते हैं, दूसरी तरफ दूसरा डिश बनाते हैं, और थर्ड अगर इंडक्शन है या ओवन है तो उसमें साइमल्टेनियसली दूसरा डिश भी बन रहा है। मेड मशीन सिस्टम और मैनी टू मैनी टाइप ऑफ मैन मशीन सिस्टम, मोर मैन एंड मशीन्स आर इन्वॉल्व हियर। यहाँ पे एक से अधिक वर्कर भी होते हैं और एक से अधिक मशीन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री फॉर ए मास प्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी। Now we will be discussing about the criteria for evaluation of man machine system. How do we evaluate the man machine system is working properly or not? First one is can be judged or can be evaluated by two types. First one is a system performance and the second one is a system reliability. System performance, entire system हमारा कैसा perform कर रहा है। Depending upon the type of system, an effective parameter on which the system can be evaluated is to be established. This criteria is to be devised or generated. ठीक है, सिस्टम हमारा वन बाय वन वी विल गो थ्रू both these topics. System performance, how does the system is operating on its performance evaluation is done, कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, इफेक्टिव पैरामीटर्स क्या क्या है उसके, किस पैरामीटर को हम मिनिमाइज़ करना है, किस पैरामीटर को हमें मैक्सिमाइज़ करना है कि वो और भी अच्छे तरीके से काम करे और भी उसकी स्पीड को बढ़ा सके, उसके एरर को कम कर सके। हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सिस्टम परफॉर्मेंस तभी हम एनहेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन एग्जांपल फॉर ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसका सिस्टम क्या रहता है, कंप्यूटर सिस्टम उसके पास रहता है, तो उसकी स्पीड को देखी जाती है। ह्यूमन जो उसमें डेटा एंट्री एंटर कर रहा है उसकी एरर देखा जाता है कि 1 मिनट में वो कितने एरर कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, और दिस ऑल द पैरामीटर्स कम्स अंडर द सिस्टम परफॉर्मेंस। एंड द सेकेंड वन इज सिस्टम रिलायबिलिटी। सिस्टम रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग इन गिवन टाइम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। उसको कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन बता दिया गया है, आपको इसी कंडीशन में काम करना है और वो उस कंडीशन में काम करता रहेगा विदाउट एनी फेलियर। मैं यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में और कुछ भी डिस्कस करना चाहूँगा। सिस्टम परफॉर्मेंस में और भी चीज़ें हम इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर। सिस्टम परफॉर्मेंस में सिर्फ सिस्टम के ही परफॉर्मेंस पे हम ध्यान नहीं रख सकते, मशीन्स के परफॉर्मेंस में ही सिर्फ हम ध्यान नहीं रख सकते। मशीन भी तभी ऑपरेट करेगा इफेक्टिव या अपनी एफिशिएंसी पूरी देगा जब ह्यूमन भी अपना इफेक्टिवनेस और अपना परफॉर्मेंस अच्छा देगा। तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ द ह्यूमन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ह्यूमन के परफॉर्मेंस को देखना है, उसके साइकोलॉजी देखना है, उसका रिस्पॉन्स देखना है, उसके एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी देखना है। ये सब हमें सिस्टम परफॉर्मेंस के अंदर कंसिडर करना चाहिए।
जैसे कि मैंने बोला कि साइकोलॉजिकली उसको देखना है, तो साइकोलॉजिकल में हम ये देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका रेस्पिरेशन रेट कैसा है, उसका हार्ट बीट कैसा है, ये सब हमें देखना रहता है। सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स में देखेंगे कि उसके सामने कोई भी अगर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट आ गया या अनप्रिडिक्टेबल कोई ऐसी घटना हो गई तो वो उस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, पीपल का ओपिनियन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, टीम लीडर या टीम वर्क में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी में उससे हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट और इंजरीज और डेथ और अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ, उसका फटीग हुआ, वो मतलब फिजिकली फिट है कि नहीं, मेंटली फिट है कि नहीं। मान लीजिए अगर कोई हमारा रेलवे में सिग्नल ऑपरेट कर रहा है और उसको कलर ब्लाइंडनेस है तो ही विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म वेल। वो कलर ब्लाइंडनेस में अगर कलर को अगर वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कि रेड है या ग्रीन है या येलो है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सीडेंटल फ्रिक्वेंसी, है ना। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिस्टम रिलायबिलिटी। सिस्टम रिलायबिलिटी मैंने बताया कि ऐसे ये इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग इन ए गिवन टाइम अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। अदर वर्ड हम ये भी बता सकते हैं, रिलायबिलिटी का मतलब होता है मेजर ऑफ डिपेंडेबिलिटी। हम कितने मैन मशीन सिस्टम कितना डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, इसको भी कह सकते हैं हम मैन मशीन सिस्टम। नाउ I will talk about one of the last topic, that is man machine component. How does machine act as a component in a man machine system, and how does a man act as a component for a man machine system? See, basically the machine receive instruction from the man and it performs and progresses and displays the information or output. Therefore, many measures at the design stage of building appliances or machines or equipment is being installed. The function usually best to allocate to a machine are for computing differentiation, integration and complex problem, short-term long-term information storage, great when response is required at a great speed. मैं यहाँ पे ये इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मशीन कैसे एक्ट करता है मैन मशीन सिस्टम में। मशीन बेसिकली कब ऑपरेट करता है, जब हम उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे, जब मैन उसे कोई इन्फॉर्मेशन देता है वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है, उसी तरीके से आउटपुट देता है। तो इसीलिए हर एक जगह पे जहाँ पे डिज़ाइन है बिल्डिंग का या किसी भी अप्लाइंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस या किसी भी इक्विपमेंट का डिज़ाइन है या उसका इंस्टॉलेशन है, तो हमें सही तरीके से मशीन को इनपुट देने की ज़रूरत है। तो हम मशीन को बेसिकली क्या अलॉट करते हैं, हम बेसिकली मशीन्स को हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, क्या इनपुट देते हैं, को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, दैट इज़ वन मैथमेटिक्स इनपुट। सेकेंड वन इज़ द स्टोरेज इनपुट। हमें क्या रहता है, पहले से प्री डिटरमाइंड डेटा हमारे पास रहता है, तो वो डेटा हम मशीन कंप्यूटर पे थ्रू एडवांस सॉफ्टवेयर हम उसको रन करा करके भी इनपुट दे सकते हैं। रेस्पॉन्स, जब हमें ग्रेटर स्पीड में रेस्पॉन्स चाहिए रहता है तो हम वो रेस्पॉन्स के लिए भी मशीन्स का यूज़ करते हैं। अब मैन मशीन सिस्टम में मैन को कैसे यूज़ होना चाहिए या मैन को अपना वर्क प्ले कैसे करना चाहिए। मैन बेसिकली इट इज़ an important part of a man machine system. The sequence of events are generated by the recipients of response. मैन भी तभी ऑपरेट करता है, अपनी एफिशिएंसी हाई दिखाता है जब उसके पास अनप्रेडिक्टेबल इवेंट आता है। अगर उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या डेली लाइफ में जो काम वो रूटीन कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अगर वो उसको वही काम हम रिपीट कराते रहें तो डेफिनेटली ही विल बी फेलिंग एज अ फटीग, और वो एरर्स करते रहेंगे। तो डे बाय डे उनके सामने ऐसे एक्सटर्नल इंटरनल वो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट आना चाहिए। तो फंक्शन क्या होना चाहिए मैन का इन अ मैन मशीन सिस्टम। फर्स्ट, इट शुड एक्ट एज ए सेंसिंग डिवाइस। मैन को पहले से ही एक इनर कॉन्शियस माइंड में सेंस होना चाहिए कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ इससे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एज अ सेंसर हिज ब्रेन शुड वर्क एज अ सेंसर नॉट अ एक्चुअल सेंसर और अ डिवाइस सेंसर बट अ इंफॉर्मेटिव सेंसर, कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ, मैं x + y = z लिख रहा हूँ, तो z लाने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, इतना उसको सेंस होना चाहिए।
इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन और ट्रांसलेशन होना चाहिए। वो कंप्यूटर को जो चीज़ें उसको बताना है, कंप्यूटर बेसिकली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज, तो हमें जो चीज़ें प्रोग्राम कोडिंग हमें करनी है तो वो कोडिंग का लैंग्वेज का हमें ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, हमें इंटरपोलेशन पता होना चाहिए, एक्स्ट्रापोलेशन पता होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ वन ऑफ द मेजर एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज़ जजमेंट एंड प्रिडिक्शन। जजमेंट और प्रिडिक्शन, मैन के जजमेंट और प्रिडिक्शन पे ही डिपेंड करेगा पूरा मैन मशीन सिस्टम। हाउ डज द मैन मशीन सिस्टम विल ऑपरेट, इट डिपेंड्स अपॉन द, it will depend upon the judgment and prediction. So at last I will come up with the summary that what we have learned today. First one is man machine system. उसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैन मशीन सिस्टम, क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन ऑफ मैन मशीन सिस्टम, सेंसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, ओपन लूप सिस्टम पढ़ा। ओपन लूप सिस्टम इज़ वन विच स्टार्टेड बट नीड्स नो फर्दर कंट्रोल। क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पढ़ा। क्लोज लूप सिस्टम इज़ वन विच स्टार्टेड बट नीड्स continuous control and it is a continuous process. Then manual system, a system in which all actions are performed by a human using non-powered devices. And the third one next we will learn semi-automatic system, some function of system which are performed by a machine component under human control. Man machine system, a machine working by a man is called a man machine system. System performance criteria which evaluate the performance of a system. System reliability, the reliability of a system is the probability of a successful performance, or we can say that reliability is dependability of the system or its component in performing its function satisfactorily. So I think we have just completed our first part of a unit 4. In the next lecture we will be going through the information theory, which is the second part of the unit 4. On Thursday we will be having a doubt clearing session and MCQ test based on the first portion of a unit 4. So I hope you will be all watching this video, or you will go through this video and you will get to learn about some of the important parameters of a human factor engineering and some of the important parameters of man machine system, types, classifications, why we need man machine system, what are the criteria for evaluation. That's all for the today's session. Enjoy good health, stay positive. Thank you.